حضور نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، ایک مخلص اور ایک ہمدرد ہوگا، ساتھی ہوگا جنت میں ہر نبی کا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان، اور جنت میں میرا جو دوست ہوگا، میرا جو مخلص ہوگا، میرا جو قریبی ہوگا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله۔ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال الله تعالى في مقام آخر، رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی رسول ہے کہ جن کی فضیلت بے شمار ہے اور جن کی شہادت مظلومانہ طریقے سے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، ان کی حالات زندگی کو بتانا آنے والی نسل کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کس طریقے سے گزرتی تھی، ان کی سخاوت کیسی تھی، ان کا علم کیسا تھا، ان کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کا اخلاص کیسا تھا، ان کا رعب و دبدبہ کیسا تھا، ان کا حضور کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرا خلیفہ ہے۔ یہ چار خلیفوں میں سے پہلا خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ ذوالہجرتین ہیں، آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے۔ ایک بار مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری بار مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے کہ ان کی ایک خاص الگ قسم کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ یہ دوہرا داماد ہیں۔ یہ
पैगम्बर अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद हैं और 2 मरतबा ये दामाद यानी दूल्हा बने हैं। हुजूर की 2 बेटियां यके बाद दिगरे इनकी ज़ौजियत में आई है। पहली बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हुआ। गज़वे बदर के मौके पर उनकी बीवी हुजूर की बेटी बीमार थी। हुजूर ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया कि तुम जंग में ना जाओ, तुम यहीं रह करके अपने बीवी की तीमारदारी करो, उनकी देखभाल करो। जंगे बदर में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जब ये लड़ाई हुई, माल गनीमत जो हासिल हुआ तो उनमें हजरत उस्मान गनी को भी हिस्सा मिला था। तो अगरचे बज़ाहिर वो शरीक नहीं, लेकिन वो अपनी वजह से नहीं रुके, बल्कि हुजूर के फरमान की वजह से वो उस जंग में नहीं शरीक हुए। बीमार थी, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, उनका इंतकाल हुआ। फिर उनकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपसे हुआ। यके बाद दिगरे दोनों बेटियों का एक साथ निकाह में जमा नहीं हो सकती है कि किसी इंसान का 2 बेटी एक इंसान के निकाह में जमा हो जाए, शरीयत में नाजायज और हराम है। चौथा पारा में कुरान करीम ने ऐलान फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखि व बनातुल उख्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम। ये मुकम्मल तफसीलात बयान फरमाने के बाद आखिर में बयान फरमाया, व अन तजमाउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ, और 2 बहनों को एक निकाह में जमा करना ये भी शरीयत में हराम और मना है। यके बाद दिगरे एक औरत का, एक खातून का जब इंतकाल हो जाए, इद्दत वगैरह जो पूरा मसला है, सिस्टम है, कानून है, उसके बाद दूसरी बेटी का निकाह हो सकता है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां जमा हुई है, तो एक साथ नहीं, बल्कि एक बेटी का इंतकाल हुआ, दूसरे मौके पर उनकी जो है बेटी का निकाह आपसे हुआ। इसी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले, क्योंकि ये कायनात में ऐसा पहला हुआ है और हजरत आदम से लेकर के कयामत तक ऐसा कभी नहीं होगा कि नबी की 2 बेटी किसी एक इंसान के निकाह में जमा हो। ये सिर्फ फजीलत और ये सिर्फ खुसूसियत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। पैगंबर की 2 बेटी, नबी की 2 बेटी किसी एक इंसान के निकाह में जमा हो जाए, ये फजीलत, ये मकाम और मर्तबा किसी और को हासिल नहीं हुआ है इस रूए जमीन पर। अगर किसी को ये फजीलत मिली है, ये मकाम मिला है, ये रुतबा अगर मिला है, तो वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये दूसरी फजीलत है। एक इंसान के निकाह में 2 औरत का जमा करना ये सही नहीं है। एक जगह में मालूम यह हुआ कि 2 बहनें एक शख्स के निकाह में जमा थी। किसी ने कहा यह हराम है, यह सही नहीं है, तो उसने किसी दूसरे लोगों के पास जाकर के मसला लेकर के आया। उसने अपना मसलक बदल करके ये कह दिया कि भाई मेरे यहाँ तो ये सही है, जायज है, और आज भी वो इंसान दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी दोनों बहनें एक साथ निकाह में जमा है। अतराफे राशि की बात कर रहा हूं। कुरान करीम की आयत के मुखालिफत पर खुले लोग इनका इनकार कर देते हैं। यके बादिगरे तो निकाह में जमा हो सकती है, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकती। तीसरी फजीलत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह है, हुजूर ने फरमाया
सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नति, जन्नत में हर नबी का एक खास दोस्त होगा, एक मुखलिस और एक हमदर्द होगा, साथी होगा जन्नत में हर नबी का। लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नति व रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, और जन्नत में मेरा जो दोस्त होगा, मेरा जो मुखलिस होगा, मेरा जो करीबी होगा, वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये मकाम व मर्तबा, ये फजीलत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। चौथी फजीलत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये है कि वो 10 सहाबा किराम जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। अशरे मुबश्शरा का मतलब क्या? अशरे मुबश्शरा का मतलब ये, वो 10 सहाबा किराम जिनको एक मजलिस में, एक महफिल में जन्नती होने की बशारत दी गई हो, उसे अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। वो 10 सहाबा किराम है जिनको हुजूर ने एक मजलिस में, एक बैठक में जन्नती होने की बशारत दी है। उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। तो क्या ये मकाम व मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए काफी नहीं है? बहुत बड़ी फजीलत है कि आपको जन्नती होने की बशारत दी जा रही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ज्यादा है। उनकी सखावत के बारे में 2-3 बातें रखते हैं आपके सामने। फजीलत की बात होगी, अब सखावत की बात सुनिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का आलम यह है, अल्लाह ने बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था, मालदार थे सहाबा किराम में, लेकिन रब ने माल दिया तो माल को आपने बेहतरीन मसरफ में, मसारिफ में, जगहों में आपने खर्च किया। मस्जिद नबवी की जब तोसी की जाने लगी, मस्जिद नबवी तंग हो गई, लोग ज्यादा हो गए, मस्जिद छोटी पड़ने लगी। मस्जिद नबवी के बगल में एक शख्स का मकान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी से फरमाया कि ये मकान दे दो, इस मकान को मस्जिद नबवी में शामिल करना चाहता हूं। उस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ उज़्र है, मैं मकान नहीं दे सकता। इंसान की मजबूरी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सखावत सुनिए कान खोल करके। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई, आप उन अंसारी सहाबी के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, 10,000 दिरहम के बदले में ये मकान मुझे दे दो। उस अंसारी सहाबी ने वो मकान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। आपने 10,000 दिरहम के बदले में वो मकान खरीद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। आपने वो हिस्सा मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। हुजूर ने उस शख्स से फरमाया था, जिसका वो जगह था, वो जमीन थी, कि तुम ये जगह दे दो, ये मकान दे दो, अल्लाह ताला तुझे इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मकान हुजूर के देने लगे, पेश करने लगे आपकी खिदमत में, तो आपने ही जुमला फरमाया, रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए भी इसके बदले में जन्नत मिलेगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ, आपको भी इस मकान के बदले में जन्नत जरूर मिलेगी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए, सखावत का आलम यह है, पैसा रब ने दिया है, जरूरत थी जगह की मस्जिद नबवी में शामिल करने की, आपने वो जगह 10,000 दिरहम में खरीद करके मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया गया। आज तक अगर उस सरजमी पे नमाज होती हुई है, कयामत तक होती रहेगी। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुफ्त में सवाब मिल रहा है। इधर जन्नत भी मिल गई, बशारत भी मिल गई, इधर सवाब ही सवाब मिल रहा है। यह है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत। दूसरी सखावत, जब लोग मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, मदीना तशरीफ लाने के बाद पानी वहां का मुनासिब नहीं था, पीने में
लज्जत नहीं, शीरी नहीं, मिठास पानी में नहीं था। मुहाजिरीन जो हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो पानी पीने में उन लोगों को परेशानी होने लगी। एक कुआं था, उस कुआं का नाम चश्मा कुआं बीर रूमा था। इस कुएं का पानी मीठा और ठंडा था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान से फरमाया, दो रिवायत है, दोनों रिवायत के मुताबिक बात कर रहा हूं। पहली रिवायत के मुताबिक कि वो कुआं एक कबीले गिफार के एक मुसलमान का वो कुआं था। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले गफ्फार के उस इंसान से ये कहा कि ये कुआं जो है वक्फ कर दो, बेच दो, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मकान बनाएगा, महल अता फरमाएगा। उस कबीले गफ्फार के इंसान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं दे देता इस कुएं को, वक्फ कर देता, लेकिन मेरे अहलो अयाल है और मेरे लिए कोई और जरिए माश नहीं है, कोई कमाने का कोई जरिया नहीं है। इसी पानी को बेचता हूं, इसके बदले में कुछ रुपया आता है, मैं इससे जो रोजी और माश का जरिया करता हूं, बाल बच्चों के खर्चे में जो है खर्च करता हूं, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता हूं। ये बात हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची। एक रिवायत के मुताबिक कि ये कुआं कबीले गिफार के एक इंसान और एक मुसलमान का था, उसने देने से इनकार कर दिया। दूसरी रिवायत यह है कि वो कुआं यहूदी का था, वो चश्मा बीर रूमा एक यहूदी का था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ये कुआं दे दो, लेकिन यहूदी तो यहूदी होता है, उस दौर में भी मुनाफिक था, उस दौर का और आज का दौर का भी यहूदी का हालत यही है, वो नहीं देना चाहता है, उसने देने से इनकार कर दिया। कि जब ये बात हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बात पहुंची कि रसूलुल्लाह ने इस कुएं का खरीदने का मुतालबा किया है, यहूदी ने देने से इनकार किया।